Okay, so today we are going to start with the topic continuity. Okay, in chapter 5, there are two topics, continuity and differentiability. The first exercise is based on continuity, and one question is definitely asked from this topic. Okay, so topic is very simple. It will make use of limits which you have already done in class 11. The only challenging part of continuity is that you need to like write the answers nicely. Okay, there is a particular way of answering the questions, and that particular way has to be followed. It is more of a theoretical concept, continuity. तो जैसे आप चैप्टर 1 में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते थे, so writing was very important in that topic. How you write, that is very important. Similarly, continuity, uh, like the topic continuity, like you need to take care of your writing portion. Okay, so that will happen only when you practice questions, refer to class notes, refer to examples, and then write. Okay, questions are very simple. So the only difference that like will be there in your answers and the way you score marks will be based on how you answer the question. So please make sure you write your answers very nicely. There is a particular way that has to be followed. Okay, so we'll start the definition first. Before we begin definition, in the last class itself we had seen a graph, two graphs we had seen, and उन दो ग्राफ्स की हेल्प से हम लोगों ने बोला था कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है, फंक्शंस की ही बात करेंगे. वी टॉक अबाउट कंटिन्यूटी फॉर फंक्शंस, is a concept for functions. So I am going to again talk about two graphs. Suppose I am saying A and B are two functions. I am going to draw their graphs and I want you to tell me which of the two graphs is continuous. Okay, now out of A and B, can you clearly tell me which graph is continuous? You can type. A. Yes, A is continuous, right? B is not continuous at this place. Here the graph has broken. Okay, and maybe the point is maybe here. Suppose at this particular point, the value of the function is this number. Suppose this is 4 and this is 2. So at point 2, the graph is broken, and instead of assuming the value on the curve, it is assuming the value 4, which is not lying on the curve, anywhere on the curve, and that is why this function is discontinuous. So this is discontinuous, and here this one is continuous. Okay, so graphically हमेशा देखना possible नहीं होता है. The easiest way is to look at graph and tell whether it is continuous or discontinuous. लेकिन जब बहुत complicated functions आपके सामने आएंगे, then it is not possible for you to draw graph. Okay, so therefore we need some algebraic methods जिनसे हम continuity check कर सकें. Okay, before we do that, let us talk about some very simple functions and let us see whether they are continuous or not using their graphs. So I'm just going to write some continuous functions here. We are going to look at some continuous functions. So maybe I will start with identity function first. अब आप लोगों ने क्लास 11 में आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखा था. Identity function is basically fx is equal to x. F is a function from R to R, and it is defined as fx is equal to x.
all remember the graph? Like, I hope you remember it. Let us just look at the graph. So the graph looks something like this. This is x and y 0. तो ये जो ग्राफ था ये ऐसा नजर आता था. तो clearly this purple line is a continuous line. It is not broken anywhere. So it is a continuous function. We can look at modulus function also. We all know the definition of modulus function. F is a function from R to R. हम R to R लिख देते हैं, but rather it goes to only non-negative numbers, क्योंकि modulus कभी भी negative नहीं हो पाता. Fx is equal to mod x, और इसका जो ग्राफ होता है, this is x, y and 0. So the graph looks like this. So again, the graph is not broken anywhere, so the function is continuous. Okay, so here I have drawn only two graphs. Similarly, you know that x square is a continuous function. Then x cube is a continuous function. वो कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो सकता है, पर वो हमेशा कंटिन्यूस होगा. इसके अलावा आपने स्टेप फंक्शन देखा था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, उसमें इस तरह की आपकी जो फिगर्स थी वो बनती थी. तो इट इज डिसकंटिन्यूस. इट इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे अभी क्वेश्चंस में भी. विदाउट यूजिंग देयर ग्राफ्स वी विल सी हाउ थ्योरेटिकली वी कैन प्रूव वेदर अ फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट. Okay, so let us look at the definition of continuity first. Look at the first definition. Suppose f is a real function. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. रियल फंक्शन क्या होता है, जल्दी से बताइए. Quickly tell me what is a real function. फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर हो. यस, वेरी गुड. जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स हों, वो होता है रियल फंक्शन. ठीक है, तो हमने बोला है कि उसके सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन. ठीक है, किसी का माइक ऑन है, आई थिंक माइक ऑफ कर दीजिए अगर आप बोलने रहे. ओके, तो c उसके डोमेन में कोई भी पॉइंट है. ठीक है, तो हम f को उस पॉइंट c पे कंटिन्यूस कब मानते हैं? व्हेन द लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज एक्चुअली इक्वल टू f ऑफ c. इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि c पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है, तो c के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे भी फंक्शन की वही वैल्यू है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. अब इसका मीनिंग देखिए कैसे समझेंगे. जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया. ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना रही हूँ. ठीक है, जैसे ये एक ग्राफ है, मैंने यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया. ठीक है, तो सी पॉइंट पे ये जो आपकी वैल्यू है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है एफ ऑफ सी. तो अभी हमने डेफिनेशन में कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ सी. यानी कि सी पॉइंट पे जो वैल्यू आई है, ये जो रेड पॉइंट मैंने मार्क किया है, उसके आसपास, लिमिट का मतलब यही होता है उसके बहुत पास जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू भी सी के इक्वल होनी चाहिए. यानी कि वहाँ से ग्राफ नहीं टूटना होना चाहिए. सपोज अगर डिसकंटिन्यूस होता तो क्या होता? सपोज ये हमारा सी पॉइंट है, इसके ऊपर सी की वैल्यू ये है, पर उसके आसपास वैल्यू ये है, तो इसमें क्या हो जाता? आपका फंक्शन क्लियरली आपको नज़र आ रहा है सी पे डिसकंटिन्यूस है. और इसका थ्योरेटिकली कैसे हम बताते कि सी पे ये जो वैल्यू है ये तो एफ ऑफ सी है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं है, उससे बहुत कम है. सपोज ये 4 है तो 4 है, और सपोज ये 0.6 है, तो यहाँ पे तो वैल्यू 6 आ रही है और लेफ्ट और राइट साइड में वैल्यू 4 आ रही है. या डिफरेंट भी हो सकती है, हो सकता है राइट में 5 आ रही हो. तो
तो वैल्यूज जब डिफरेंट हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। लुक एट द डेफिनेशन अगेन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन एफ सी पे कंटिन्यूस तब माना जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज लिखी है, पर आप जानते हैं कि लिमिट में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी भी पॉइंट पे? हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं यानी कि एफ ऑफ सी। अगर तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बस यही सिंपल सा एक मेथड है जो हमें फॉलो करना होता है। तो इसी के नीचे हम लिख लेंगे दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी is equal to right hand limit at c is equal to f of c, that is functions value at c। तीनों के तीनों सेम होना चाहिए, यानी c पॉइंट पे जो वैल्यू है वही उसके लेफ्ट में और वही उसके राइट में होनी चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन और है, देखिए इसमें हमने बोला कि सी पॉइंट पे कंटिन्यूस है फंक्शन, लेकिन अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो मैंने ये नहीं बोला सी पॉइंट पे होता है या बी पॉइंट पे होता है या एक्स पॉइंट पे होता है या टी पॉइंट पे होता है। मैंने सिर्फ ये बोला वो कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है वो हर जगह कंटिन्यूस है। ठीक है, मतलब वो थ्रू आउट अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है। तो यही नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कोई भी रियल फंक्शन एफ है उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं अगर वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। यहाँ पे हम सिर्फ सी पॉइंट की बात कर रहे थे कि किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, और यहाँ डेफिनेशन 2 में हम कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस तब बोलेंगे अगर वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। ओके, आर बोथ द डेफिनेशंस क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वेश्चन से हम मेथड समझेंगे, पर डेफिनेशन समझ में आई है? मैम डाउट है हाँ बताओ। मैम, वो ऊपर जो लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन वो एक पॉइंट के लिए निकाल रहा है, हाँ और ये नीचे बता रहे हैं कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा जब हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो हम हाँ पूरे ग्राफ के लिए यानी पूरे फंक्शन हर एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो हाँ हर एक पे निकालेंगे। हाँ, मतलब मीनिंग उसका यही है, पर हम हर एक के लिए नहीं निकालेंगे, हम एक जनरल पॉइंट लेके प्रूव करेंगे कि हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है। पर हाँ, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, हर एक पॉइंट पे चेक करना है, पर हम एक्चुअल में हर एक पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे आर पे। तो हम एक जनरल पॉइंट लेंगे एक्स वाई सी कुछ भी, और उस पे कंटिन्यूस शो करेंगे। तो किसी भी अगर जनरल पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो यानी सब पे कंटिन्यूस है। ओके ओके मैम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो याद रखनी है वो ये है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको फंक्शन नॉर्मली डिफाइंड होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, एफ डिफाइन किया आर से आर पे, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल इन द सेंस कि ये सभी पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है, सबके लिए सेम डेफिनेशन है। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें सेम डेफिनेशन नहीं होती है, आपने ऐसे फंक्शंस भी देखे हैं। एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड है और उसमें बोल देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन ही देख लीजिए, उसमें बोलते हैं एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, आपने ये दोनों टाइप के फंक्शंस देखे हैं सबने? दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि फंक्शन में डिफरेंस क्या है? यस मैम। ठीक है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो सबके लिए एक ही फंक्शन फॉलो कर रहा है, एक ही रूल है जो सब पे लग रहा है। जो सेकंड वाला फंक्शन है, सपोज इसको ए बोल रही हूँ, इसे बी बोल रही हूँ, जो सेकंड वाला फंक्शन है उसमें जो है डेफिनेशन 0 पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे वाले फंक्शंस में देखिए बहुत ध्यान से ये आप याद रखेंगे क्योंकि यही आपके वर्क को इजी करेगा।
ऐसे फंक्शंस जिनमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन है उनको हम उसमें हम LHL RHL नहीं निकालते हैं, सिर्फ लिमिट निकालते हैं। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन ऐसे फंक्शन जिनमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी फंक्शन दो अलग अलग तरह के डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, ऐसे वाले फंक्शंस के लिए आप LHL भी निकालेंगे और RHL भी निकालेंगे। किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे जहां वैल्यू बदल रही है। किस पॉइंट पे यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है इस पर्टिकुलर फंक्शन में? 0। हाँ, 0 पे। तो सिर्फ 0 पे आप LHL RHL निकालेंगे। अब ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ऊपर वाला जो A पार्ट है, A वाला जो फंक्शन है, उसमें आप LHL RHL निकालने में बिना बात के टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें LHL RHL इक्वल ही होगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन डेफिनेशन। पर सेकेंड वाले में LHL RHL हम उस पॉइंट पे निकालेंगे जहां वैल्यू बदल रही है, यानी 0 पे। जैसे अगर कोई और फंक्शन होता है आपका fx इज इक्वल टू से 2x प्लस 3 एंड माइनस एक्स प्लस 4, और मैं बोल रही हूँ ये है x इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 और ये है x ग्रेटर देन 3, तो इसमें आप किस पॉइंट पे आप LHL RHL निकालेंगे? 3। हाँ, 3 पे। ठीक है, जो जिस पॉइंट पे वैल्यूज बार बार चेंज हो रही हैं, तो ये याद रखना है। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट अस बिगिन द क्वेश्चन। लिखने का तरीका सीखना है, बाकी तो बहुत सिंपल है। देखिए, आपको 3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, अब आप ये बताइए, इसमें आप LHL RHL निकालेंगे? नो मैम। हाँ, देयर इज नो नीड टू फाइंड LHL एंड RHL। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बस लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं f इज, या ये सब भी लिखने fx, एक तो आपको ये चीज निकालनी है और दूसरी चीज निकालनी है f(3). अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। फटाफट निकालिए और मुझे वैल्यू बताइए। ये आपने निकालना सीखा है क्लास 11 में। 17। हाँ, 17 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिखते कैसे हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बस कुछ नहीं करना, x की जगह पे 3 पुट कर देना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 1 यानी कि 17 आ गया। अब नीचे f(3) का मतलब क्या है? लिमिट विमिट नहीं लिखना है, जो फंक्शन है उसमें बस 3 वैल्यू पुट कर देनी है। तो फिर से आपके पास 18 माइनस 1 यानी कि 17 आ गया। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पॉइंट पे, पॉइंट 3 पे? ठीक है, हाँ, यस। ओके, बस एक मनीष को ही पढ़ा रही हूँ मैं, बाकी कोई लोग पढ़ नहीं रहे हैं क्या? ना कोई आंसर देते हो, ना कुछ टाइप करके कमेंट करते हो। There is no point of being present if you are not answering, not participating. We are Is answering. कहाँ आंसरिंग? मेरे को तो कोई कमेंट में नहीं दिख रहा। चलो बताओ मुझे, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस और नॉट? यस और नो लिख के भेजो। एट 3। It's continuous. हाँ, इट इज कंटिन्यूअस एट 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx is equal to f(3), f is continuous at x equal to 3। यही हमारा क्वेश्चन था। So this is the way how you will write the answer. Okay. Now let us move on to the next question. अब ये डेफिनेशन 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। कैसे ये डेफिनेशन 2 टाइप के हैं? एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब पिछले क्वेश्चन में तो आपको दिया गया था कि x इज इक्वल टू 3 पे आपको चेक करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि कहाँ चेक करना है। तो इसका मतलब है आपको हर जगह चेक करना है।
ठीक है, अब जैसे कि मनीष ने डाउट पूछा था कि क्या हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे, तो नहीं, हम हर पॉइंट पे नहीं चेक करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक जनरल पॉइंट मानेंगे सी, उस पर शो कर देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर फंक्शन किसी जनरल पॉइंट सी पे कंटिन्यूस है तो वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे खुद ही कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, डोमेन की आपको ध्यान रखना है। जैसे बी पार्ट में देखिए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन इन बी पार्ट? all real but x is not equals to हाँ, ठीक है, कोई डोमेन मेंशन नहीं है इन फंक्शंस के लिए, तो यानी कि सारे के सारा सबका डोमेन आर है, और कोई अगर पर्टिकुलर पॉइंट आर में इंक्लूडेड नहीं होने वाला है, डोमेन में इंक्लूडेड नहीं होने वाला है, तो वो मेंशन्ड है। जैसे बी पार्ट में सब रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 5, सी पार्ट में सब रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट -5। ठीक है, चलो अब हम लिखना सीखते हैं। लेट अस टेक बी पार्ट, विल डू ओके, मे बी लेट अस टेक सी एंड डी पार्ट। ठीक है, थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड है वैसे वाले देखते हैं। सी और डी पार्ट हम ट्राई करेंगे, तो पहले हम सी पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये फंक्शन है, एफ एक्स आपको गिवन है x² - 25 अपॉन x + 5। ठीक है, अब हमें किसी सभी पॉइंट्स पे से कंटिन्यूस बताना है कि है, तो हम क्या बोलेंगे? हम सब पॉइंट नहीं लेंगे, हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे। लेट सी बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। तो हमने एफ फंक्शन के डोमेन में कोई भी एक पॉइंट ले लिया सी। अब बिल्कुल उसी तरह से वर्क करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। देन लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स। एक तो ये चीज निकालते हैं और दूसरा निकालते हैं एफ ऑफ सी। फटाफट निकालिए, सी के टर्म्स में ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये तो नंबर है नहीं। पिछले वाले में हमें 17 इसलिए मिला था क्योंकि नंबर 3 दिया हुआ था। जल्दी से निकालिए, क्या आएगा आपका लिमिट और एफ सी? हाँ, C - 5 वेरी गुड में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देखिए, हम यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू C, एफ एक्स की प्लेस पे आ जाएगा x² - 25 और x + 5। ठीक है, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू C। ऊपर वाले में आप जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो हो जाएगा x + 5, x - 5 अपॉन x + 5। तो x + 5 x + 5 कैंसिल हो जाएंगे, और इसलिए हमारी जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी इज इक्वल टू C - 5। x की जगह पे C रख देंगे। ठीक है, ये होगा f ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू C एफ एक्स। ठीक है, अब हम दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ सी। तो इसके लिए लिमिट नहीं लगाना है, अब हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें c पुट करना है, तो यानी कि c² - 25 अपॉन c + 5। सिमिलर मेथड से यू विल गेट c - 5। तो अब आपकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट c। तो इसके आगे हम कैसे लिखेंगे? विल राइट सिंस limit x tending to c fx is equal to f of c, f is continuous at c। अब c तो कोई, this implies f is a continuous function। डोमेन वोमेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि वो फंक्शन जो है डोमेन पे कंटिन्यूस है। ठीक है, बिकॉज C इज आर्बिट्ररी। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ, C इज आर्बिट्ररी। आप नहीं लिखेंगे तो भी वो अंडरस्टूड है। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड हाउ डू वी सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको पॉइंट नहीं दिया है? यस मैम।
ठीक है। तो ऐसे वाला जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपकी जो आंसर आएगा वो सी के टर्म्स में आएगा ज्यादातर। 0 आ जाए तो अलग बात है या 1 आ जाए, वैसे ज्यादातर सी के टर्म्स में आएगा। अब एक और क्वेश्चन जो हम करने वाले थे वो ये वाला है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। It was fourth part. fx is equal to mod x minus 5। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। मैम इसके लिए RHL निकालना है ना? हाँ, इसके लिए हमें LHL RHL सिर्फ उस पॉइंट पे निकालना होगा जहाँ पे फंक्शन वैल्यू बदल रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, कुछ लोगों को याद होगा और कुछ को नहीं होगा। ये देखिए, ये होता था मॉड एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता था, माइन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो इसी की हेल्प से हम इस फंक्शन को भी लिखेंगे। तो एफ एक्स, इसमें क्या होता है, फंक्शन एज इट इज आएगा इफ, वहां पे लिखते थे हम, लिखेंगे x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इक्वल भी डाल देंगे, और यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 5 इफ x इज लेस देन 0। ये स्टेप समझ में आया कि कैसे लिखा हमने डेफिनेशन को यूज करके? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट्स ओपन। मैम समझ नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे ये हमने डेफिनेशन लिखी है मॉड एक्स की, ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है। तो इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम इस फंक्शन में यूज करेंगे। इस फंक्शन में मॉड एक्स की जगह पे मॉड एक्स माइनस 5 है। तो जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर में ये जो डेफिनेशन लिखी है, इसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां x माइनस 5 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ये मैंने यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा है ना, यहाँ पे x माइनस 5 आना चाहिए। जहां जहां x आया है वहां वहां x माइनस 5 आ जाएगा। कोई और फंक्शन भी होगा मॉड के अंदर, सपोज होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, तो भी वो एज इट इज वैसे ही आ जाएगा जहां जहां x आता है मॉड की डेफिनेशन में। ठीक है, ओके। अब हम इन ब्रैकेट्स को थोड़ा ओपन कर लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 5 इफ, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 इफ x इज लेस देन 5। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल फंक्शन जो है वो ये बन गया, और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन दो दो वैल्यू अज्यूम कर रहा होता है तो हमें LHL RHL निकालना पड़ता है कौन से पॉइंट पे? 5। हाँ, ठीक है, 5 पे देखिए वैल्यू बदल रही है फंक्शन की, तो इसलिए आप 5 पे LHL RHL निकालेंगे। पर देखिए क्वेश्चन जो था वो ये नहीं था कि 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपको सारे डोमेन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको इसमें 3 स्टेप्स में आंसर करना होगा। एक बार आप वो सारे पॉइंट्स लेंगे जो 5 से बड़े हैं, एक बार वो सारे पॉइंट्स लेंगे जो 5 से छोटे हैं, और एक बार हम इक्वल टू 5 लेंगे, उसमें हम LHL और RHL निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे, मैं साइड में एक बार फंक्शन दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे इफ एक्स इज लेस देन 5, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, ये फंक्शन है। तो अब हम केस 1 लिखेंगे। पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे C। इस तरह का क्वेश्चन जो आता है वो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। लेट C बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ F। तो F के डोमेन में हमने C एक पॉइंट लिया है। ठीक है, अब हम C की वैल्यूज जो है वो अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। तो हम केस 1 में कहेंगे
कि अगर c 5 से बड़ा है, यहाँ से ले रहे हैं हम, ये जो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है वो यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो केस 1 में हम कह रहे हैं सपोज c इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अगर c इज ग्रेटर देन 5 है तो अब दोबारा से कुछ नहीं करना, लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx निकालेंगे और लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे c पे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए आप फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे। क्वेश्चन में तो दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। x माइनस 5। हाँ, फर्स्ट वाली लेंगे x माइनस 5, क्योंकि c इज ग्रेटर देन 5, तो उसके लिए ये वाली जो है डेफिनेशन फॉलो होगी, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से जल्दी से निकालिए, बहुत इजी है। लिमिट निकालेंगे x माइनस 5 के लिए, फोर मार्क्स में पूछा जाता है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन डेफिनेटली। c माइनस 5। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, fx की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस 5 और इसलिए आ जाएगा c माइनस 5, और यहाँ पे भी डायरेक्टली आ गया c माइनस 5। तो अब हम बोलेंगे सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, या ये एंड में लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया। या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c ग्रेटर देन 5, क्योंकि c आर्बिट्ररी पॉइंट है इसलिए फॉर ऑल लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया केस 1। अब केस 2 क्या होगा? गर्ल्स में से कोई बताइए जरा, गर्ल्स बिल्कुल बोलती ही नहीं है। व्हाट विल बी केस 2? ये ना गर्ल्स की इज्जत का सवाल है कि उन्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं। वैसे भी देयर इज अ जनरल परसेप्शन कि गर्ल्स को मैथ्स कम समझ में आता है। देखिएगा आप ये गूगल पे सर्च करके, पहले यही माना जाता था। चार्मी माइनस एक्स प्लस 5, हाँ गुड अपेक्षा, यस, ठीक है। अब हम करेंगे केस 2। तो केस 2 में हम बोल रहे हैं सपोज c इज लेस देन 5, ठीक है। तो फिर से लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx। मुझे पता है कि ये बहुत इरिटेटिंग है बार बार सेम चीज लिखना, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी रिटन, और इस ऐसे आप सारी चीजें लिखेंगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, अब जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया कि फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस 5, तो हो जाएगा माइनस c प्लस 5, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस c प्लस 5। सो दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c लेस देन 5, ठीक है। तो अब देखिए केस 1 में हमने 5 से बड़े नंबर्स देख लिए, केस 2 में 5 से छोटे देख लिए। अब कौन सा एक केस बच गया है हमारे पास कि अगर नंबर कितना है? 5। हाँ 5 है, ठीक है। अभी तक हमने 5 पे नहीं देखा है, तो अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट 5। तो केस 3 में हम कहेंगे एट c इक्वल टू 5, ठीक है। c की यूज नहीं करेंगे हम, इसलिए एट 5 सिर्फ लिख लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट है तो हमें c की जरूरत नहीं है, एट 5, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था क्योंकि वैल्यू फंक्शन की चेंज हो रही है 5 पे, तो इसलिए आपको LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL भी निकालना पड़ेगा, और फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी 5 पे। तो LHL होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस, यानी कि 5 से छोटे नंबर्स के लिए डेफिनेशन यूज की जाएगी, यहाँ पे 5 से बड़े नंबर्स के लिए डेफिनेशन यूज की जाएगी, और यहाँ तो f ऑफ 5 निकालना ही है। जल्दी से मुझे LHL और RHL बताइए, टाइप करके फटाफट मुझे बताओ। हाँ राइट है ना, 0 0। बाकियों को भी बताना है। तो LHL फटाफट मुझे बताओ सबका कितना आ रहा है LHL। मैडम 0। ओके, देखो LHL के लिए हम 5 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो करेंगे। देखिए 5 के लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या था?
ये माइनस एक्स प्लस 5, तो ये यूज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस माइनस एक्स प्लस 5, तो हो जाएगा -5 प्लस, मतलब -5 प्लस 5 यानी कि 0। एक्स की जगह पे 5 लिखते हैं हम। ये तो पता है ना, 5 माइनस नहीं लिखते हैं, 5 माइनस बेशक लिखते हैं लेकिन पुट आपको 5 ही करना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस के लिए डेफिनेशन थी x माइनस 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0। और 5 के, जब 5 के इक्वल है फंक्शन तब क्या डेफिनेशन है, देखिए 5 के इक्वल में फंक्शन यहाँ है तो डेफिनेशन है x माइनस 5। वैसे दोनों वर्क कर जाते हैं मॉड्यूलस फंक्शन में, तो हो जाएगा x माइनस 5 यानी कि 5 माइनस 5 यानी कि 0। तीनों इक्वल आ गए। सो इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट 5 ऑल्सो? यस मैम। ठीक है, तो हमने शो कर दिया है कि फंक्शन सारी जगह कंटिन्यूअस है। तो अब हम बोलेंगे सिंस LHL at 5 is equal to RHL at 5 is equal to f of 5, so f is continuous at 5. Therefore, from cases 1, 2, and 3, f is continuous in its domain, यानी वो सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। आपने देख लिया 5 से छोटे पे भी कंटिन्यूस है, 5 से बड़े पे भी और 5 पे भी, तो उसके डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं सब जगह वो कंटिन्यूस है। तो इस तरह से आपको स्टेप वाइज सारा लिखना होता है। ठीक है, अब मैं कुछ हिंट्स दे रही हूँ क्योंकि मैं ये होमवर्क में दूंगी आप लोगों को। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 6th वाला बिल्कुल वैसा है जैसा अभी अभी हमने किया है मॉड वाला। ठीक है, 2 से छोटे सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे, 2 से बड़े सारे पॉइंट्स पे, और फिर 2 पे चेक करने के लिए LHL RHL दोनों निकालेंगे। 7th वाले में देखिए ज़्यादा पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें आपके बहुत सारे केसेस बनेंगे। एक केस 1 बनेगा कि -3 से छोटा है, केस 2 बनेगा कि -3 और 3 के बीच में है, केस 3 बनेगा कि 3 से बड़ा है। ठीक है, ये यहाँ से केसेस आ गए। अब जिन पॉइंट्स पे वैल्यू चेंज हो रही होती है वहाँ पे अलग से निकालना पड़ता है। तो एक केस 4 बनेगा जिसमें आपको एट -3 चेक करना होगा, और एक केस 5 बनेगा जिसमें एट 3 भी चेक करना होगा। -3 पे चेक करेंगे और 3 पे भी चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है मैम, हाँ बताइए। ये वाले क्वेश्चन में सी लेंगे क्या? हाँ सी लेंगे ना, ये वाले जो तीनों केसेस हैं 1, 2, 3 इनके लिए तो सी लेना पड़ेगा। देखो जब कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता तो सी लेना पड़ेगा। अगर कोई पॉइंट फिक्स्ड है जैसे कि -3 फिक्स्ड है, 3 फिक्स्ड है, इक्वल टू 3 ले रहे हैं ना हम, इक्वल टू -3, तो हमें सी लेने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों केसेस में आप LHL RHL निकालेंगे और इन वाले तीनों केसेस में आप सी लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी आप कह रहे थे ना, इस वाले में सी ले रहे थे, इस वाले में सी ले रहे थे, और 2 के लिए LHL RHL ले रहे थे। ठीक है, मैम सी क्यों लेंगे पता नहीं चल रहा। सी क्यों लेंगे? जब आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है तब आपको सी लेना है। देखो मैम नॉर्मली हमें वो फंक्शन कंटिन्यूअस लग ही रहा है ना मैम, वो यानी एक क्रिटिकल पॉइंट 2, जैसे कि 6 क्वेश्चन में 2 है, वो क्रिटिकल पॉइंट है, उस पॉइंट पे चेक कर देंगे तो हो जाएगा ना मैम। नहीं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें अगर चाहो तो नहीं भी लिखोगे, पर नहीं, अभी मैंने आज सिखाया तो आज तो सब लिख के मुझे दिखाओगे। ठीक है, अगर इसमें ये होता फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की जगह होता डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ, तो आपको सारे केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, सी देखो जितना भी डोमेन होता है आपको उसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूस शो करना है। तो कुछ पॉइंट्स तो फिक्स्ड होंगे, जैसे कि यहाँ पे यानी जहाँ पे ऑल पॉइंट बोलेंगे तब सी लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं -3 और 3,
तो इनके ऊपर तो आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा, पर बाकी सबका क्या होगा कि -3 से छोटे जो नंबर हैं, 3 से बड़े जो नंबर हैं, या -3 और 3 के बीच के जो नंबर हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी शो करने के लिए आपको एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना तो आप हर पॉइंट पे थोड़ी कंटिन्यूटी चेक करते रहेंगे ऐसे, मतलब हर पॉइंट लेते रहेंगे। अच्छा मैंने 3 ले लिया, अब मैं 3.1 ले लेती हूँ, 3.111 ले लेती हूँ। तो आपको C एक वेरिएबल लेके शो करना होगा कि वो कंटिन्यूस है। ठीक है, अभी आज आप ऐसे करिए, इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, अभी आप सिर्फ लिखना प्रैक्टिस करेंगे। आई विल सेंड यू द होमवर्क इन गूगल क्लासरूम। ठीक है, आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद कल हम सीखेंगे कि यही वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Thank you.